Hello friends, today I am going to discuss the part 2 of how to solve the numerical on electrochemistry. इससे पहले हमने पार्ट 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो हमने किया था जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. एंड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हमने डिस्कस किया था द न्यूमेरिकल, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल फ्रॉम द कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट. आज हम बात करेंगे उसके दूसरे हिस्से के, इसलिए इसका नाम हमने दिया है पार्ट 2. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर, यू कैन सी क्लियरली रिटन, एकदम साफ साफ लिखा है हम क्या कवर करने वाले हैं. द न्यूमेरिकल फ्रॉम द फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. बट हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल में नहीं जाएंगे. व्हाट आई रियलाइज, व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट द फीडबैक आई रिसीव्ड, उससे लगता है कि पहले हम थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फैराडे. इनफैक्ट मैं ये भी बताऊंगा ये फैराडे लॉ हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टोरी में क्यों आया, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन. And then we are going to discuss that, understand rather, Faraday's first law को हम समझेंगे, Faraday's second law को समझेंगे, Faraday's first law का हम equation बताएंगे, Faraday's second law का equation बताएंगे, and at the end we are going to discuss the numerical related to from the first law and second law. Probably we are going to discuss 4 to 5 numerical, and this numerical really help to understand the basic of electrochemistry numerical solving, and that basic will help you in the entrance exam as well. Board exam के लिए तो है ही है, no matter you are from state board, you are from CBSE, all kind of board have the electrochemistry on the 12th standard. So let's start with our second part, and that is the numerical from Faraday's first law and second law. So let's start by knowing what is Faraday, क्योंकि ये जरूरी है कि जानना कि फैराडे आखिर है क्या, बिकॉज फैराडे का वैल्यू हमारे न्यूमेरिकल में आगे जाके लगेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडे. बेसिकली फैराडे इज ए बिगर यूनिट ऑफ चार्ज. Smaller unit of charge is coulomb and the bigger unit of charge is Faraday. That is the first line. Now we have to understand the definition. What is the definition of the Faraday? The charge of 1 mole of electron is known as 1 Faraday. एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है that is Faraday. So let's calculate the value of Faraday. So let me write 1 Faraday equals to 1 mole of electron into the charge of electron. Okay, 1 mole of electron into the charge of electron, जैसा हमने डेफिनेशन में बताया exactly हमने ऐसा लिखा है. Now 1 mole of electron means Avogadro number, and that is 6.022 into 10 to the power 23. Okay, and charge of 1 electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So ultimately अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे it will get 96,473 coulomb per mole of electron, और हम लोग लेते हैं 96,500 coulomb per mole of electron. So this is 1 Faraday. So 1 Faraday equals to 96,500 coulomb per moles of electron. I want all of you please note it down. So this is the concept of the Faraday. Again I am telling you that Faraday is the bigger charge or bigger unit of charge. Okay, now let's start with the Faraday's first law and second law. So let's start with the Faraday's first law. But before I go to the discussion on the Faraday's first law, let me tell you ये Faraday's first law, second law इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टोरी में कहां पर मिलता है हमें. एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे मैंने यहां पर ड्रॉ किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं. अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर ऑफ 2 टाइप. One is electrolytic cell, another one is the galvanic cell. In the electrolytic cell में क्या होता है कि हम लोग चार्ज देते हैं. We are supplying the electrical energy to carry out a chemical reaction. Means electrical energy convert into chemical energy. And in galvanic cell, the chemical energy से हमें electrical energy मिलता है.
ओके, एनीवे, सो नाउ ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जुड़ा हुआ जो बात मैंने कही कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के डिस्कशन में हमें फैराडेज लॉज मिलते हैं. So that is very very important to know that Faraday's first law and second law is related to the electrolytic cell. I hope you can note it down. So let's start. So Faraday's first law, it states that the amount of substance that undergoes oxidation or reduction. So we have to understand this also. कि जितना हम जो सब्सटेंस होगा, जितना ऑक्सीडेशन होगा उतना ही रिडक्शन होगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड इन द न्यूमेरिकल. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन at each electrode during electrolysis is directly proportional to the amount of electricity that passes through the cell or amount of charge, electricity or the charge. अब जितना चार्ज पास कराओगे उतना वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता रहेगा. नाउ यहां पर मैंने साफ साफ लिखा है, दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तीन लोग रहते हैं, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. यू कैन सी, सपोज मैंने सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड लिया है एज ए इलेक्ट्रोलाइट. ओके, इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी इन द लिक्विड फेज. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा. दैट वी नीड टू रिमेंबर. एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड हमेशा रिडक्शन होगा. नो मैटर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या गैल्वेनिक सेल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा. नाउ टू अंडरस्टैंड कि सर हमें कैसे पता चलेगा, व्हाट डज इट मीन बाय द ऑक्सीडेशन, व्हाट डज इट मीन बाय द रिडक्शन. दो तरीके से हम इसको आसान तरीके से याद रख सकते हैं. इफ देयर इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज ऑक्सीडेशन. If there is a reduction in the oxidation state, that is reduction और reduction. okay, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन, रिड्यूस, रिडक्शन. सो यू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर. ये हो गया एक तरीके. दूसरे तरीके से कैसे, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है. दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ यहां पर क्या होगा, देखिए सोडियम इज ए कैटायन, कैटायन विल गो टू द कैथोड और कैथोड में जाके यहां पर मास डिपॉजिट होगा. That is important. Always remember the mass is deposit only on the cathode. खाली कैथोड में ही मास डिपॉजिट हो सकता है, एनोड में कभी मास डिपोजिशन नहीं हो सकता. एंड दैट इज द रीजन. यहां से एक एंट्रेंस एग्जाम में सवाल आता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अगर मुझे कोई सब्सटेंस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, लाइक उसके ऊपर मेटल का कोटिंग देना है, तो हमेशा उस सब्सटेंस को आपको कैथोड बनाना पड़ेगा. दैट इज ऑल्सो यू कैन नोट डाउन. ओके, आज के डिस्कशन में हम लोग काफी अच्छे पॉइंट्स की बात उभर के आ रही है जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूरी है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है. सो डिपोजिशन हमेशा कैथोड में होता है और जैसे मैंने कहा इससे क्या होगा, मास डिपॉजिट होगा. अगर मास डिपॉजिट हो रहा है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट मास डिपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. ओके, चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी. और we know that Q is equals to I into T. ये हमें पता है that charge equals to current into time. Current in ampere and time in second. So ultimately I can write the mass or in bracket W is directly proportional to the I into T in second. तो ये हमारा एक फंडामेंटल बन गया फैराडेज फर्स्ट लॉ का. और आई कैन राइट W इक्वल्स टू Z into I into T. Z here is a proportional constant. ओके, नाउ यहां पर हमारा बेस बन गया. सो वी मेक द बेसिस ऑफ द फैराडेज फर्स्ट लॉ. अब मैं आपको बताऊंगा कि फैराडेज फर्स्ट लॉ से जुड़ा हुआ हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है. सो लेट्स have a quick equation from the Faraday's first law. Okay, Faraday's first law से ही बात हो रहा है. Mass of the substance produced, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कैथोड में, इक्वल्स टू I is the current in ampere,
T in the second divided by 96,500 coulomb per moles of electron, that is Faraday, into mole ratio into molar mass. Now यहाँ पर सारे फॉर्मूला में मुझे लगता है दिस इज न्यू, ये वर्ड नया मिला है, मोल रेशियो. व्हाट इज मोल रेशियो? यू कैन सी दैट मोल रेशियो दो मोल्स का रेशियो. कौन से दो मोल? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम लोग 1 बाय वैलेंसी भी बोल सकते हैं. एक एग्जांपल के साथ बताएंगे, शायद और इजी हो जाएगा. सपोज वन सॉल्ट इज लेट्स से जिंक क्लोराइड, ये न्यूमेरिकल में दिया रहेगा सॉल्ट का नाम. यहां पर मैंने भी एक सॉल्ट लिया है जिंक क्लोराइड. सो यू कैन सी जिंक क्लोराइड ये डिसोसिएट होके देगा Zn+2 माइनस. ना इसका मोल रेशियो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ओके, मोल रेशियो इसका अगर हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स यहां पर देख सकते हैं. एक लाइन में और लिखता हूं यहां पर. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट Zn+2 इलेक्ट्रॉन गिव यू Zn. तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2. तो मोल रेशियो फिर क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में मोल रेशियो विल बी 1/2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2. सो मोल रेशियो इज 1/2. सो इस तरीके से आप मोल रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इज वैलेंसी. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ जिंक हियर? +2. सो आई कैन राइट 1/2. ये देखिए 1 बाय वैलेंसी. सो इस तरीके से मोल रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप इट इज एनीवन कैन अंडरस्टैंड दिस. एंड नाउ वी गो फॉर द फैराडेज सेकंड लॉ. So now let's have some discussion on the Faraday's second law. हमने Faraday's first law समझा, उससे जुड़े हुए काफी सारे बातें हमें किया, and we got the equation of the Faraday's first law. Now it is essential to understand the Faraday's second law. It states that when the same amount of electricity is passed through different cell, okay, look at here. Same amount of electricity we are passing through the different cell, okay, containing different electrolytes. Different electrolytes, यहाँ पर जिंक क्लोराइड, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर कॉपर सल्फेट, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स तीनों अलग अलग सेल में है. एंड arrange in series. So I want all of you please mention this word series, and they are connected in a series. You can see that they are connected in series. Okay, they are connected in a series. Okay, same amount of electricity हम पास कर रहे हैं. Why I said this word is important? Because जहां पर भी न्यूमेरिकल में आपको ये वर्ड मिलेगा series, it means they are indicating to use the Faraday's second law. Faraday's second law की तरफ वो आपको इशारा करेगा. इसीलिए मैंने बताया कि ये वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so again, so their same amount of electricity is passed through different cell containing different electrolytes and arranged in series. The amount of substances oxidize or reduce. Now, amount of substance oxidize or reduce, मैं फिर से बता रहा हूं, जितना ऑक्सीडेशन होगा उतना ही रिडक्शन होगा, जितना रिडक्शन होगा उतना ही मास डिपॉजिट होगा. ओके, सो दे ऑल आर इक्विवेलेंट. जितना ऑक्सीडेशन होगा उतना रिडक्शन होगा, जितना रिडक्शन होगा, क्योंकि रिडक्शन कहां होता है? कैथोड में, इसीलिए कैथोड में मास डिपॉजिट होगा. सो यू कैन सी आई रोट कैथोड में मास डिपॉजिट हुआ है. At the respective electrodes are directly proportional to their chemical equivalent mass. फिर से एक नया वर्ड मिला हमें, केमिकल इक्विवेलेंट मास. मैं लिखता हूं. सो व्हाट दे सेड कि जितना मास डिपॉजिट हो रहा है, सो मास लाइक W जितना डिपॉजिट हो रहा है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर chemical equivalent mass. In short I can write CEM. Okay, chemical equivalent mass, so it's proportional to CEM. अब बात यह है कि what is CEM? CEM क्या है? Now CEM मैं यहां पर लिख देता हूं, very easy to remember. Okay, that CEM is equals to molar mass
molar mass upon valency. Okay, molar mass upon valency. So I am writing here again, it is a molar mass. So I am writing it again. You can see molar mass by valency, or I can write this is a proportional to the molar mass by valency. Okay, so जितना mass deposit होगा that will be directly proportional to chemical equivalent mass, or you can say molar mass by valency. अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा फैराडेज का सेकेंड लॉ का ये है equation. This is the equation derived from the second law. And what's that? That moles of A produce divided by moles of B produce equals to mole ratio of A by mole ratio of B. यहाँ पर ये बात समझिए, अगर आप B को ऊपर लिखेंगे तो इधर भी मोल रेशियो B ऊपर हो जाएगा, बस that is very simple to understand. So ये वाला फॉर्मूला से हमने ये डिराइव किया है. Now sometimes many of the students they don't understand this. ये उनको समझ में नहीं आता कि सर हमने यहाँ पर बताया कि mass deposit is directly proportional to the molar mass by valency के साथ इसका कैसे connection है वो हमें बताइए. So let's quickly discuss. So moles of A. So can I write moles of A is directly proportional to the mole रेशियो ऑफ ए. देखिए ऊपर दोनों है मोल्स, तो मैंने मोल्स लिखा है, मोल्स को हमने एन ए करके लिखा है. एन स्टैंड फॉर मोल, ए स्टैंड फॉर ए, सो मोल्स ऑफ ए. नाउ मोल्स मतलब क्या है? मोल्स मतलब लाइक मास बाय मोलर मास. Proportional to mole ratio मतलब 1 by valency, or you can say mass is directly proportional to the molar mass by valency or proportional to chemical equivalent mass. So simple. आप देखिए यहाँ से कितने आसान तरीके से हम ये समझ सकते हैं. I think this is the beautiful part of this entire Faraday's second law. तो हमें फैराडेज का फर्स्ट लॉ मिल गया, हमें फैराडेज का सेकंड लॉ मिला. ये वाला पार्ट आपको याद रखना है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. एग्जाम में सवाल आते हैं कि फैराडेज सेकंड लॉ, अगर फैराडेज सेकंड लॉ आया ये स्टेटमेंट के साथ ऐसा अगर आप ड्रॉ करके दिखाएंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, इट विल गिव यू द मैक्सिमम मार्क्स. Okay, that is also tricks we need to know that how to write in the exam. इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है. Okay, that is also description box में उसका लिंक मैंने दिया है. So this is all about the theory of today's numerical. अभी हम न्यूमेरिकल में जाएंगे because now we understand what is Faraday, what is Faraday's first law, what is Faraday's second law, उसका थ्योरी क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है. अब हम चलेंगे इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल करने के लिए. So let's start with our first numerical. Now this kind of numerical जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट द एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी जरूरी है. So let's start with this numerical. How many Faradays and Coulomb of electricity are required to produce 5 gram of magnesium from MgCl2? ये हमारा न्यूमेरिकल है कि मुझे 5 ग्राम मैग्नीशियम अगर मुझे प्रोड्यूस करना है फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मुझे कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा. ओके, कितना इलेक्ट्रिसिटी लगता है, दैट इज आवर क्वेश्चन इज. ओके, दैट इज आवर क्वेश्चन. एंड द मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है, दैट इज 24 ग्राम पर मोल, ये दिया हुआ है. हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? क्या MgCl2 ये नाम हमारे लिए इंफॉर्मेशन है? यस, ये भी एक इंफॉर्मेशन है. क्या? क्योंकि MgCl2 ये फॉर्मूला से आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैग्नीशियम आयन. सो MgCl2 ये नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट MgCl2 ऑन डिसोसिएशन गिव यू Mg+2 + 2Cl-. सो इससे हमें पता चल गया +2 चार्ज है. नाउ कैन आई राइट Mg+2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू Mg. इसका मतलब यह है कि 1 मोल मैग्नीशियम के लिए मुझे 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 1 मोल मैग्नीशियम के लिए, ओके आई कैन राइट लाइक दैट, 1 मोल मैग्नीशियम के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन मुझे खर्चा हो रहा है. यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आई नीड 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 फैराडे एंड 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम का मतलब है 24 ग्राम.
दैट इज द बेसिक ऑफ दिस न्यूमेरिकल। आप मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं दैट 24 ग्राम मैग्नीशियम को प्रोड्यूस करने के लिए आई नीड 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट वी कैन क्लियरली सी। तो 1 ग्राम के लिए मैग्नीशियम के लिए मुझे लगता है 2 फैराडे बाय 24, और मुझे बता कितना प्रोड्यूस करना है, 5 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूस करने के लिए बोला है। सो इट विल बी लाइक 2F into 5 by 24, the 0.416 Faraday. So this is my first answer. So this is my first answer that 5 ग्राम मैग्नीशियम को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 0.416 फैराडे लगेगा। बट मैंने जानबूझ के न्यूमेरिकल में कूलम भी ऐड किया है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल में दे आर आस्किंग अबाउट द कूलम आल्सो। ओके, सो कूलम के हम लोग कैसे करेंगे? सो वी नो दैट वेरी क्लियरली, ओके, वी नो वेरी क्लियरली दैट 1 Faraday is equals to 96,500 कूलम, ये हमें पता है। तो फिर 0.416 Faraday, it will be 96500 into 0.416 equals to 40144 कूलम. So this is my second answer. Okay, 40144 कूलम, that is will be the my next answer. ओके, सो सिंपल, न्यूमेरिकल्स आर सो सिंपल। ऐसा न्यूमेरिकल आप लिख के रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जितना हो सके, बिकॉज इन दिस वीडियो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट वैरायटीज ऑफ न्यूमेरिकल। ये बात सच है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना उतना ही जरूरी है। चलिए, लेट्स गो फॉर द सेकेंड प्रॉब्लम। सो लेट्स गो विथ आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एंड दिस न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट कुछ समझ तक पहले वाला न्यूमेरिकल के साथ मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी मैंने दिया है क्योंकि वर्डिंग अलग है। तो वर्डिंग अगर अलग हुआ फिर भी हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा सोच, हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए ये न्यूमेरिकल मैंने दिया है। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन 0.42 ग्राम ऑफ सिल्वर इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। ओके, हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया, 0.42 ग्राम ऑफ सिल्वर प्रोड्यूस हुआ। कहां होगा प्रोड्यूस? हमेशा कैथोड में होता है, बिकॉज मेटल डिपॉजिट एट द कैथोड, मेटल का रिडक्शन होता है आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर टाइम बताया गया लेकिन कुछ नाम नहीं बताया, खाली बताया कुछ समय बाद, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। Calculate the quantity of electricity required. Calculate the quantity of electricity required. ये पूछा गया आपको। देखिए यहां पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा गया है, ये नहीं बताया कि इन टर्म्स ऑफ फैराडे और कूलम। अगर ऐसा रहा तो हम लोग हमेशा कूलम प्रेफर करेंगे, विल रिपोर्ट द आंसर इन टर्म्स ऑफ कूलम। यहां पर भी ऐसा ही करेंगे। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज्यादा चाहिए मुझे, और वो है सिल्वर का एटॉमिक मास या मोलर मास भी दिया हुआ है। सो हम लोग किस तरीके से न्यूमेरिकल को करते हैं, सबसे पहले ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है। सिल्वर नाइट्रेट कैसे? बिकॉज AgNO3 डिसोसिएट होके आपको देगा Ag प्लस एंड NO3 माइनस। इसका मतलब सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। So I can write that Ag plus 1 mole of electron give you Ag. इसका मतलब यह है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से आपको 1 मोल सिल्वर मिल रहा है। ओके, सिमिलरली जैसे पहले न्यूमेरिकल में क्या था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से मुझे 1 मोल सिल्वर मिल रहा है, ये हमें पता चल गया। ना 1 मोल सिल्वर का मतलब कितना है? 108 ग्राम, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 फैराडे। सो नाउ एवरीथिंग इज वेरी इजी कि 108 ग्राम सिल्वर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 फैराडे, और आई कैन राइट 96,500 कूलम लगता है। तो फिर 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा? ऑब्वियसली 96,500 कूलम बाय 108। ओके, एंड देन
हाउ मच फॉर 0.42, ये हमें पूछा गया है। सो 0.42 ग्राम सिल्वर के लिए हमें लगेगा 96,500 इंटू 0.42 डिवाइडेड बाय 108 कूलम, एंड माई आंसर विल बी 375.4 कूलम. So that will be my answer. Okay, 375.4 coulomb, that is the answer. And you can see how numericals are easy. कभी कभी हमें सोचने में बहुत डर लगता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत कठिन होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. We can, if we understand the thing very easily, we can obviously do the better in the exam. Okay, चलिए now let's go for the next numerical. So let's go for our third numerical. Okay. During electrolysis of molten calcium chloride. Why molten? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया इलेक्ट्रोलिसिस लिक्विड स्टेट में हो सकता है. सो मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड को हमने मेल्ट किया है. 0.8 एम्पियर करंट इज पास थ्रू द सेल फॉर 1 आवर. बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गया हमें. Calculate the mass of the product formed at cathode. कैथोड में कितना मास डिपॉजिट हो रहा है अगर हमने कैल्शियम क्लोराइड का, मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो. अगर आप देखेंगे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है. सबसे पहले 0.8 एम्पियर, इसका मतलब I का वैल्यू है 0.8 एम्पियर, टाइम का वैल्यू है 1 आवर. ओके, the mass of the, okay, they asked to calculate the mass. अच्छा, मोलर मास का वैल्यू हमारे पास है एंड दैट इज 40 ग्राम पर मोल. कैल्शियम क्लोराइड, ओके, कैल्शियम क्लोराइड मतलब है कैल्शियम क्लोराइड ऑन डिसोसिएशन गिव यू कैल्शियम प्लस 2Cl माइनस, मतलब मेरा मोल रेशियो भी मेरे पास है. ओके, मोल रेशियो इज 1 बाई वैलेंसी, सो 1/2. इतने इंफॉर्मेशन हमारे पास है और ये साफ साफ आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि यू नीड टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल विद द हेल्प ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ. फैराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला एक बार लिखते हैं हम लोग. हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, दैट इज मास डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू I इन एम्पियर, टाइम इन सेकेंड upon 96,500 into mole ratio into molar mass. ये हमारा फॉर्मूला है, हमने इससे पहले भी वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किया है. अब देखिए यहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है. I, so I can write that is 0.8 एम्पियर. अच्छा, टाइम जो है, टाइम यहां पर 1 आवर है, तो इसको हम लोग सेकेंड में कैसे करेंगे. We know that 1 hour is 3600 second, so I can write 3600 second by 96,500. मोल रेशियो इज 1/2, मोलर मास इज 40 और ये मास है तो हमारा यूनिट होगा ग्राम. सो अल्टीमेटली 0.5698 ग्राम इज द आंसर. ओके, सो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं. कैलकुलेशन करके 0.5698 ग्राम विल बी द आंसर. तो देखिए न्यूमेरिकल हमें करना क्या है. जैसे मैं मेरे हर एक न्यूमेरिकल के वीडियो में मैंने बोला है, जब भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे 3 चीजें करना है. 3 सिंपल स्टेप वी नीड टू फॉलो. फर्स्ट इज द गिवन, सेकेंड वन इज द इक्वेशन एंड थर्ड इज द कैलकुलेशन. मेरे सारे न्यूमेरिकल के वीडियो अगर आप देखेंगे, सब में मैंने एक बहुत सिंपल साधारण सा नियम बताया, सो दैट इट विल नॉट ओनली हेल्प टू सॉल्व द केमिस्ट्री न्यूमेरिकल, इट विल आल्सो हेल्प टू सॉल्व द फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी. Okay, so let's go for our, I want all of you please note it down. Okay, now let's go for our next numerical. Now we are going to discuss a numerical which is bit different, थोड़ा सा अलग है. बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी होगी ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल. हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू लिबरेट. यू कैन सी हियर, लिबरेट की बात हो रही है, प्रोड्यूस की बात नहीं हो रही है, मास डिपॉजिट की बात नहीं हो रही है, लिबरेट की बात हो रही है. लिबरेट कौन होता है? गैस लिबरेट होते हैं. ओके, 3 into 10 to the power minus 3 kg of iodine from Ki solution by the passage of 4 ampere current through it.
एंड मोलर मास का वैल्यू दिया हुआ है। अब इस न्यूमेरिकल में क्या नया है मैं जरूर बताऊंगा आपको। पहले हम लिख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले लिबरेट 3 into 10 to the power minus 3 kg of iodine. So the mass of iodine is given 3 into 10 to the power minus 3 kg. इसको हम 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे so it become ग्राम। हमें ग्राम में ही चाहिए क्योंकि ये ग्राम पर मोल आपको दिख रहा है। From Ki solution by the passage of 4 ampere. So I is 4 ampere, ये दिया हुआ है। मोलर मास दिया हुआ है 127 ग्राम पर मोल। ओके, ये भी दिया हुआ है। अच्छा, आपको निकालने के लिए क्या बोला, हाउ मच टाइम। सो दे आस्क्ड यू टू कैलकुलेट द टाइम। ये हमें है। नया क्या है वो मैं बताता हूं अभी। नया ये है कि Ki on dissociation give you K plus I minus। यहां पर I माइनस की बात हो रही है और I माइनस का क्या होगा, I माइनस होगा ऑक्सीडेशन। सो I माइनस गिव यू I प्लस इलेक्ट्रॉन। इससे पहले हमने क्या किया था, सारे जो न्यूमेरिकल मैंने बताया सब में मैं रिडक्शन की बात किया था, तो कहीं ना कहीं रिडक्शन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन फैराडे का फर्स्ट लॉ अगर आप याद करेंगे वहां साफ साफ बताया गया था द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विल बी सेम। ओके, तो अगर यहां पर मैंने जानबूझ के एक ऑक्सीडेशन वाला एग्जांपल लिया है तो इस केस में मोल रेशियो क्या होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो मोल रेशियो, फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट यहां पर कितना है 1 मोल, सो आई राइट 1 मोल। ओके, 1 मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। सो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, सो ये भी 1 मोल। सो अल्टीमेटली द मोल रेशियो इज 1। बात ये नहीं है कि वैल्यू मेरा कितना आया, बात ये है कि ऑक्सीडेशन वाला अभी न्यूमेरिकल आएगा तो आप लोग सब सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी कि अभी ऑक्सीडेशन के टर्म में आया या रिडक्शन के टर्म में आया, किसी भी टर्म में अगर न्यूमेरिकल आता है तो मोल रेशियो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो बचा हुआ हिस्सा है दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई होप एवरीवन कैन डू दैट। सो दैट इज अगेन from the Faraday's first law, we know that W is equals to I in ampere, time in second divided by 96,500 into mole ratio, okay, into mole ratio into molar mass, okay, into mole ratio into molar mass। हमारे पास W का वैल्यू है that is 3 ग्राम, I का वैल्यू है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। टाइम हमें निकालना है और जो आएगा सेकंड में आएगा अपॉन 96,500। मोल रेशियो 1, मोलर मास इज 127 ग्राम पर मोल। ओके, सारे वैल्यू बिठाएंगे तो टाइम का वैल्यू आएगा 5698 सेकेंड। इसको अगर मैं आवर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो हम लिखेंगे 5698 सेकेंड डिवाइडेड बाय 3600 से अगर आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1.583 आवर। सो दैट विल बी आंसर इन आवर। अब यहां पर अगर आप आंसर सेकंड में छोड़ देते, यहां पर छोड़ देते, दैट यू विल गेट द फुल मार्क्स, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आवर में मांगा है तो आप ये कीजिए, अदरवाइज नो नीड टू डू इट, बिकॉज आप भले ही कैलकुलेशन सही करेंगे तब भी आपको उतना मार्क्स मिलेगा, बट द यू विल गोइंग टू लूज सम मोर टाइम। सो बेटर टू स्टॉप हियर। अगर न्यूमेरिकल में आवर में नहीं पूछा है, न्यूमेरिकल आप यहां पर ही रोक दीजिए। ओके, नाउ लेट्स, सो जैसे मैंने बताया इस न्यूमेरिकल में ये वाला हिस्सा नया है, ये वाला हिस्सा नया है। ओके, कि दैट मोल रेशियो हाउ टू कैलकुलेट फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन के लिए सब लोग हमने डिस्कस किया है, बताया है, अभी ऑक्सीडेशन। सो नाउ लेट्स गो फॉर आवर लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स डिस्कस द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इज अगेन टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर न्यूमेरिकल। लेट्स स्टार्ट। In a certain electrolysis experiment, 1.55 gram of silver were deposited. 1.55 gram of silver. So मैं लिख लेता हूं, mass of silver is given 1.55 gram.
in one cell containing AgNO3 aqueous AgNO3 solution। मैंने आपको फिर बताया कि सॉल्ट का नाम भी हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। सो AgNO3 का मतलब है I can write AgNO3 on dissociation give you Ag plus NO3 minus। so मोल रेशियो हमारे पास आ गया। So mole ratio is 1/1 equals to 1, okay? क्योंकि इसका वैलेंसी 1 है, so 1 by valency 1। Calculate the mass of zinc, okay? मतलब what they asked to calculate, उन्होंने बोला है कि calculate the mass of zinc, okay? Zinc deposited in another cell of containing aqueous zinc sulfate। so zinc sulfate क्या है, ZnSO4 on dissociation give you Zn plus 2 SO4 minus 2। so इसका मोल रेशियो भी हमें मिल गया and that is 1/2, okay? solution connected in series, okay? now ये वर्ड साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि दिस न्यूमेरिकल इज रिलेटेड टू द फैराडेज सेकेंड लॉ। ये मैंने पहले भी बोला था, अभी न्यूमेरिकल में भी दिखाया। सीरीज विथ AgNO3 सेल, ओके? सो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हमारे पास दो इंफॉर्मेशन और भी है एंड दैट इज द मोलर मास ऑफ जिंक दिया हुआ है। यू कैन सी दैट 65.4 ग्राम पर मोल, ओके? और मोलर मास ऑफ सिल्वर भी दिया हुआ है, दैट इज 108 ग्राम पर मोल, ओके? सो इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है और ये हम इजीली और आसान तरीके से समझ सकते हैं, ओके? सो यू अंडरस्टैंड दिस मच इंफॉर्मेशन is about the silver, this much information about the zinc, और ये आपको निकालने के लिए बोला है, ओके? मुझे नहीं लगता कि मुझे ड्रॉ करना चाहिए क्योंकि साफ साफ समझ में आ रहा है दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है कनेक्टेड इन सीरीज, ओके? नाउ हमें कैलकुलेट कर क्या करना है, मास ऑफ द जिंक। सो फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ से हम लोग क्या पता है, दैट इज नंबर ऑफ moles of zinc by moles of silver equals to mole ratio of zinc divided by mole ratio of silver, okay? ऐसा हम लिखेंगे। आप सिल्वर को भी ऊपर कर सकते हैं, जिंक को नीचे, तो ऑटोमेटिकली इधर भी सिल्वर ऊपर जिंक नीचे होगा। दैट इज वेरी सिंपल। नाउ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, मैं यहां पर लिख के देता हूं। मोल्स मतलब है मास अपॉन मोलर मास m। so this is the basic formula of moles। so moles of zinc मतलब मैं लिखूंगा that is the mass of zinc by molar mass of zinc divided by mole ratio of silver, again mass of silver by molar mass of silver इक्वल्स टू मोल रेशियो ऑफ जिंक। हमें वैल्यू कैलकुलेट करके रखा है, मोल रेशियो ऑफ जिंक इज हाफ डिवाइडेड बाय मोल रेशियो ऑफ सिल्वर, ये भी हमने यहां पर बता के रखा है 1, सो आई एम राइटिंग 1। सो व्हाट इज द मास ऑफ जिंक, मास ऑफ जिंक हमें नहीं पता, वही हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, उसको हम एज इट इज छोड़ दिया। मोलर मास ऑफ जिंक का वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 65.4 divided by mass of silver is given 1.55 ग्राम, ओके? 1.5, मैं यूनिट क्योंकि किसी का निकला, इसका भी मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं। 1.55 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सिल्वर, अगेन इट इज 108, ओके? इक्वल्स टू अगेन इट विल बी हाफ। सो अगर आप सारी वैल्यू देखेंगे, सो आई कैन राइट W zinc by 65.4 into 108 by 1.55 equals to half। अगर आप सॉल्व करेंगे सो आपको मास ऑफ जिंक आएगा
0.47 gram, and that is my answer. Okay, this is my answer of 0.47 gram. Okay, 0.47 gram is the answer. और ये कैलकुलेशन काफ़ी आसान है, तो न्यूमेरिकल एक बार फिर से हम बता देते हैं, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में सीरीज की बात किया गया है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज रिलेटेड टू फैराडेज सेकेंड लॉ. इंफॉर्मेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दिया हुआ है. ओके, हमने फॉर्मूला लिखा, वैल्यू बिठाया, कैलकुलेशन किया. ओके, सो आई होप दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल सर्टेनली हेल्प to all my students to understand the numerical from the electrochemistry. आज का हमारा ये पार्ट 2 का वीडियो था. मैंने आपको पहले भी बताया था, आई एम अगेन कमिंग विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल की पार्ट 3 भी आएगा, जहां पर हम न्यूमेरिकल करेंगे रिलेटेड टू द गैल्वेनिक सेल. तो पार्ट 1 में हमने कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल किया. आज के वीडियो में फैराडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से किया. हमारा अगला वीडियो में आई विल डू द न्यूमेरिकल ऑन द गैल्वेनिक सेल. एंड आई होप दिस काइंड ऑफ वीडियोस certainly help to all the students of CBSE, the state board, okay, for your board exam as well as for the entrance exam. Thank you very much. Namaskar.